अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ एएम न्यूज़ पर। नाज़रीन, पाकिस्तान चारों तरफ से ख़तरात में घिरा हुआ है। बैरूनी ख़तरात भी हैं और कुछ अंदरूनी सूरत हाल भी पाकिस्तान की ऐसी है जो ख़तरात में तब्दील होती दिखाई दे रही है। आज इसी हवाले से बात करेंगे, भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या साजिशें कर रहा है, अफ़गानिस्तान के साथ उसका गठजोड़ क्या है, और फिर उसके बाद हम आपको भारत की दो अहम शख्सियात यानी अजीत डोवल की गुफ्तगू सुनवाएंगे और फिर उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कैसे कर रहे हैं और वो दिखाएंगे। Terrorism in India. One is Pakistan, it is the sponsor of this thing. So, in the smothering process, one thing is tackling Pakistan. How do we tackle Pakistan? I talked about their having the nuclear threshold, having the strategic weapon systems, missiles, strategic partnership with China. India is having a long border with China and Pakistan. How do we tackle with it? You know, we engage an enemy in three modes. One is a defensive mode. That is, you see all the chowkidars, the chaprasis outside. That is, if somebody comes here, we'll prevent him. We will defend this. One is the defensive offense. That is, to defend ourselves, we will go to the place from where the offense is coming. And third is the offensive mode, where you go outright. Nuclear threshold is a difficulty in the offensive mode, but not in the defensive offense. While we are working today only in the defensive mode. Now, when we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. But when you change the engagement from the defensive mode, because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90, still 10 hurt me, and I can never win. Because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. नाज़रीन, अजीत डोवल की गुफ्तगू आपने सुनी, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस किस्म की प्लानिंग कर रहा है। पिछले कुछ अर्सा पहले, यानी कि 4 या 5 हफ्तों पहले एक ख़बर थी कि अजीत डोवल ने खुफिया दौरा किया है इराक़ का, और ये ख़बर पाकिस्तान के जो बहुत हाईली प्लेस्ड सिक्योरिटी सोर्सेज हैं उनकी जानिब से एक ब्रीफिंग में मिली थी। उस ब्रीफिंग में हम भी शामिल थे और पाकिस्तान ने उसका जो मुमकिन हद तक जो उसके मुकाबले के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था, जवाबी इक़दामात किए जा सकते थे, पाकिस्तान ने वो उठा लिए थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो साजिशें बैरून मुल्क पनप रही होती हैं वो कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ती ही हैं। अजीत डोवल की गुफ्तगू के बाद हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में दाइश की कंसंट्रेशन बढ़ गई, क्योंकि वो इराक़ गए थे और फिर इराक़ में उन्होंने भारी रकूम भी तकसीम की थी, जिसका तस्करा डोजियर में नहीं आ सका क्योंकि ये वाक़या डोजियर के बाद हुआ। उसके बाद दाइश को हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में वो तालिबान के जो ऐसे लोग थे जो अमन नहीं चाहते, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान में, और फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, उनका तो बिल्कुल ही मूड नहीं है कि वो पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूलों पर रहे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग को छोड़ दें, क्योंकि उन्हें भी भारत सपोर्ट करता है और इसके बड़े शवाहिद भी दिए गए हैं पाकिस्तानी डोजियर में। वो तमाम के तमाम कहा ये जा रहा है कि दाइश में शामिल हो गए और दाइश के 2 सूबों में तालिबान के साथ जो उनकी लड़ाई हुई, उसके बाद दाइश पाकिस्तान को अफ़गान हुकूमत के NDS से बाकायदा तौर पर अपनी पनाह में ले लिया है। अफ़गान फ़ौज की जानिब से बाकायदा तौर पर उनको उनकी मदद की जा रही है।
यानी जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो बॉर्डर्स हैं वहाँ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गठजोड़ है दोनों का, यानी एक अरसे से हम ये कह रहे हैं कि भारत का गठजोड़ है अफ़गानिस्तान के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। इस हवाले से जो ज़राए हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ग्रेट गेम का आगाज़ 2019 में ही हो गया था। पाकिस्तान इससे आगाह भी था, और ये ग्रेट गेम वो किस तरह करना चाहते थे ज़रा वो हम आपको जो फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ सुनवाते हैं। यानी जो भारत के एक रहनुमा है सुब्रमण्यम स्वामी, वजीर भी है, बीजेपी के एक थिंक टैंक भी समझे जाते हैं, वो क्या कहते हैं पहले ज़रा उसको सुनने फिर उसके ऊपर बात करते हैं। मैं समझता हूं कि हमें फैसला करनी चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करेंगे। बलूचिस्तान को अलग करना है, उसको स्वाधीन बना के देश घोषित करना है, सिंध को भी देश घोषित करना है, पख्तूनिस्तान को भी देश घोषित करना है, तो शेष पंजाब है उसको घेर के रखना है। जी नाज़रीन, तो ऐसे में जब पाकिस्तान के मगरबी सरहदों पर दोस्त नुमा जो हुकूमत है, दुश्मन हुकूमत एक तरह से उसको कहा जा सकता है, वो और फिर भारत का जो गठजोड़ है, ये कोई हम नहीं कह रहे, ये इस गठजोड़ के हवाले से एक भारतीय प्रोफेसर है इंग्लैंड में, डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के वो प्रोफेसर हैं अविनाश पलवाल। ये सब उन्होंने अपनी ताज़ा किताब में लिखा है जो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से उन्होंने लिखी है, और उसमें उन्होंने ये बताया कि नरेंद्र मोदी किस तरह अफ़गानिस्तान के साथ साझबाज करके पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों को इसका इल्म भी है, जाहिर सी बात है डोजियर में जो कुछ भी दिया गया है वो इसी इल्म की बुनियाद पर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, ये सूरत हाल ख़तरनाक होती जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी खुलकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम तोड़ना चाहते हैं। अजीत डोवल की भी गुफ्तगू आपने सुनी, वो पाकिस्तान को मैनेज करार देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भारत वो मुल्क है जिसके 44 बैंक टेररिस्ट फाइनेंसिंग में मुलव्वस हैं, जो दाइश को पैसे देता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पैसे देता है। और फिर हाल ही में जो गठजोड़ सामने आया है पुलवामा वाक़े के हवाले से, अर्नब गोस्वामी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत का, किस तरह से अर्नब गोस्वामी को पहले ब्रीफ किया गया, उसको किस तरह से बचाया गया जब वो गिरफ़्तार हुआ, कौन कौन ऐसा था जिसकी नींदें उड़ गई थी, ये सब कहानियाँ भी हैं। उससे पहले इंडिया क्रॉनिकल के हवाले से जो पाकिस्तान के मुखालिफ एक स्कैंडल है, जो EU डिसइंफो लैब, उस हवाले से जो चीज़ें सामने आई तो वो बहुत वादे तौर पर ये बताती हैं कि पाकिस्तान चारों अतराफ से ख़तरात में घिरा हुआ है। चीन पाकिस्तान के साथ इस मामले में खड़ा है। अमेरिका की पोजीशन ज़रा मुख्तलिफ है। अमेरिका का को जहाँ पाकिस्तान की ज़रूरत है वो वहाँ पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाता है, लेकिन ज़्यादातर वो भारत को ही बकअप कर रहा है अमेरिकी हुकूमत के बाद। दानिश्वर और कल जब तब्दीली आएगी और जो नए सदर हल्फ उठाएंगे, उसके बाद ये समझा जा रहा है कि भारत के साथ जो अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है, अब उसमें कुछ तब्दीली आएगी, यकीनी तौर पर तब्दीली आएगी, उसके बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त तक जो ट्रंप हुकूमत थी वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का इजहार तो करती रही, लेकिन पाकिस्तान मुखालफत पर भी तुली रही, और ये मुखालफत उस वक्त ज़्यादा शदीद ख़तरात का बायस बन सकती है जब वो हमारे अंदर से कुछ सूरत हाल ऐसी पैदा हो जो अदम इस्तेहकाम करने का बायस बन सके। लेकिन इसमें एक अहम पेशरफ्त है नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में जो बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात हैं, मुल्ला गनी ब्रदर ने पाकिस्तान की दावत पर एक गैर एलानिया या खुफिया दौरा किया यहाँ। उसी दौरान में चीन के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान में मौजूद थे। कहा यही जा रहा है, इतलात यही है कि अफ़गान वफ़द की उनसे भी मुलाकात हुई, क्योंकि चीन भी ये चाहता है कि बैनुल-अफ़गान मुफ़ाहमती अमल जो है, मुज़ाकराती अमल जो है, उसको आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान ने यह तालिबान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो तशद्दुद कम करें ताकि अफ़गानिस्तान में अमन आ सके। तालिबान ने जवाबी तौर पर यह पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि वो अमेरिका से बात करे, और अगर अमेरिकी हुकूमत और काबुल इंतज़ामिया उन पर हमले बंद कर देती है तो फिर वो भी हमले बंद कर देंगे। इसी हवाले से मुल्ला गनी ब्रदर ने पाकिस्तान को ये यकीन दिलाया है गुज़िश्ता रोज़ जब वो वापस गए हैं दोहा, उससे पहले कि वो तालिबान क़यादत से इस पर बात करेंगे और ही विल गेट बैक टू पाकिस्तान।
इस दौरान में एक और बड़ी पेशरफ्त यह है कि रूस के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी पाकिस्तान आ रहे हैं अगले चंद दिनों में। और ये तमाम ये जो दोनों बड़े ममालिक हैं ये अमेरिका का भी रास्ता रोकना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मदद से अफ़गान मज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि पीस इन अफ़गानिस्तान को यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि आर्मी चीफ वाज़ेह तौर पर ये अफ़गान हुकूमत को भी और तालिबान को पैगाम दे चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान में अमन के मुतरादिफ है और अफ़गानिस्तान की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली भी जुड़ी है। नाज़रीन, ये पेशरफ्त बढ़ रही है और हमें यकीन है कि पाकिस्तान, चीन और रूस मिलकर अफ़गान तालिबान को इस बात पर कायल कर लेंगे, लेकिन जो अफ़गानिस्तान में दुश्मन है वो उसी तरह नलीफाए होंगे जब तालिबान उनके सामने खड़े होंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल है उसके लिए हम ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि उस पर हुक्मरानों को भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। अब आज जैसा हमने देखा कि रेड जोन सारा दिन उसी तरह कर्फ्यू ज़्यादा दिखा जैसे पिछले कई दिन से वाशिंगटन दिख रहा है, क्योंकि कल तकरीब हल्फबर्दारी है। तो ये कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि अपोजिशन ने तो ये कहा था कि वो पुरअमन तौर पर आएंगे और अपोजिशन आई, तीनों चारों अतराफ से आई, लेकिन बड़े पैमाने पर उन्होंने लोग भी इकट्ठे किए और बहुत पुरअमन तरीके से आई। अपोजिशन का मकसद इलेक्शन कमीशन को याददाश्त देना था उस केस के हवाले से जो फॉरेन फंडिंग के मामले में चल रहा है। अब इसमें भी एक बड़ी कबाहत की बात है, हमारे अदारे भी जब प्रॉपरली काम नहीं करते तो फिर जाहिर सी बात है शोर उठता है। 6 साल से फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, स्टेट बैंक की तहकीकात भी मौजूद है, स्क्रूटनी कमेटी 1 माह का काम 2.5 साल में नहीं कर सकी, तो फिर शकूक तो पैदा होते हैं और इन्हीं शकूक की वजह से आज अपोजिशन को भी सामने आना पड़ा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक और बारीक वारदात डाली। हमारी इतला ये है कि इलेक्शन कमीशन के ही बाद हुकाम की मिली भगत से PTI ने जवाबी तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग की दरख्वास्त दायर की। हालांकि दोनों जमातें ये कह रही हैं कि वो अपने सबूत दे चुकी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी अपना काम ही मुकम्मल नहीं कर रही, मामले को लिंगर ऑन कर रही है और यही लिंगर ऑन करना सियासी इंतशार को मजीद हवा देगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आज ही मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ एक नया मुकदमा सामने आ गया है। पिछले दिनों में सलीम मांडवी वाला के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर कर दिया गया। तो ये जो लड़ाई है ये बढ़ती जा रही है नैब की और अपोजिशन की और हुकूमत की और अपोजिशन की। इमरान खान साहब एक ऐसी वाहिद शख्सियत है जो इस लड़ाई को कम कर सकते हैं, लेकिन वो लड़ाई को कम करने पर तैयार नहीं है, बल्कि जो उनके इर्द गिर्द के साथी हैं, ब्रॉडशीट के मामले में जो कुछ भी हो रहा है, ब्रॉडशीट ने फिर शहजाद अकबर साहब का नाम दिया है, सुप्रीम कोर्ट उनके नाम पर एतराज़ कर चुकी है, लेकिन शहजाद अकबर अपनी जगह मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान अदारों को भी चैलेंज कर रहे हैं और अपोजिशन को भी चैलेंज कर रहे हैं। अब देखिए ये ऊँट किस करवट बैठता है, अगले चंद दिन में इसका फैसला होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।